Okay, number 2. दूसरी बात, Can I make disciples? क्या मैं चेले बना सकता हूँ? Yes. हाँ. How? By reaching out. किस तरह? लोगों की तरफ पहुंचकर. Now, Jesus said the Great Commission, he said, go into all the world. जब परमेश्वर ने बड़ी आज्ञा दी तो उसने कहा जाओ और सारे. He didn't say wait at home and wait till people come to you to share the gospel. उसने ये नहीं कहा कि रुको या अपने घर में बैठो और वहीं बैठे रहो, वहीं तुम्हें मौका मिलेगा. So we've got to go. हमें निकलना होगा. Many of you are going. हम में से कई लोग जा रहे हैं. You're going on your office trips. हम में से कई लोग अपने ऑफिस की ट्रिप्स पे जा रहे हैं. You're going to school. हम स्कूल जा रहे हैं. You're going to your workplace. आप अपने कार्यालयों की ओर जा रहे हैं. Okay, but Jesus said to go and make disciples. लेकिन यीशु ने कहा कि जाओ और चेले बनाओ. So we've got to look for opportunities. और हमें ऐसी चीजों को देखने की जरूरत है. Now, don't become obnoxious and just go and bang everybody with the gospel. आपको इस तरह से नहीं करना कि हर किसी व्यक्ति के पास जाकर आप सुसमाचार सुनाते चले जाएं. So when they see you in the corridor in the office, all of them start running. जिस किसी भी व्यक्ति को आप कहीं पर भी देखें, आप उसके पास दौड़ते हुए चले जाएं. There's the Bible thumper coming. और ये एक थोपने वाला व्यक्ति आ रहा है. Huh? We've got to be clever, right? और हमें समझदार होने की आवश्यकता है. Jesus said go, so you're going and banging people. No, he didn't say go and bang people with the gospel. He said go and make disciples. यीशु ने कहा जाओ, उसका ये मतलब नहीं कि चलते चले जाओ और जो मिल रहा है उसके पास जाओ. तुम जाओ और चेले बनाओ. So we need to look at our oikos. Oikos is a Greek word for household. और हमें क्या देखने की जरूरत है? एक ग्रीक यूनानी शब्द है ओइकोस, जैसे कि हमारा घराना. Oikos is all the people in contact with you in your life. ओइकोस का मतलब होता है वो सब लोग जो आपसे किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं. The maid who comes to your house. शायद आपके घर की कामवाली हो. Your office co-workers. आपके कार्यालय के लोग हों. Your neighbors. शायद आपके पड़ोसी हों. Your unsaved relatives. या जो बचाए ना गए हों वो रिश्तेदार. All the people you talk to. सारे व्यक्ति जिनसे आप बात करते हैं. And also then through them all their oikoses. और उन्हीं के द्वारा उनसे जुड़े हुए लोग. I like the story in the book of Acts. और प्रेरितों के काम में जो कहानी है वो मुझे बहुत पसंद है. Paul and Silas were in prison. पौलुस और सिलास बंदीगृह में हैं. And at midnight it says they were singing and praising God. और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास भजन गा रहे हैं. God sent a powerful earthquake. और परमेश्वर एक बहुत ही बड़ा भूंडोल भेजता है. It must have been at least 7.0 on the Richter scale. We don't know. और शायद रिक्टर स्केल पे. Because all the doors opened. और शायद ऐसा हुआ था कि सारी नींवें हिल गई थी और सब द्वार खुल गए थे. It was a violent earthquake. और एक बहुत ही भयावह भूकंप आया था. And the jailer was so scared. All these prisoners have, run out and they've gone and they're free. So he wants to kill himself and fall on his sword and die. और जो जेलर था वहाँ पे वो इतना डर गया था क्योंकि लोग वहाँ से कैदी भाग रहे थे और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा. And Paul says, no, don't harm yourself. We're all here. और पौलुस ने कहा कि नहीं अपने आप को मत मारो क्योंकि हम सब तो यहीं हैं. And the jailer was so impressed. It says in verse 29 of Acts 16 that he felt trembling before Paul and Silas. और प्रेरितों के काम 16:29 में ऐसा लिखा है कि वो जो जेलर था वो इतना डर गया कि वो उसके सामने गिर गया. And he then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? और उसने ये पूछा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? And they replied, believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and your oikos. और उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. Hallelujah. Hallelujah. It's so interesting how Paul and Silas, through this miraculous event, they touched the head of a family and his entire household got saved. और ये कितनी ही आश्चर्यकर्म भरी बात है कि उस भूंडोल के बाद पौलुस और सिलास जो कि बंदीगृह में थे उन्होंने उस जेलर के हृदय को छुआ और उसका सारा घराने ने उद्धार पाया. And what were they doing? और वो क्या कर रहे थे? Were they thumping that jailer on the head with a Bible? क्या वो थोप रहे थे कुछ उस जेलर के सर पर? They're just worshiping God. वो सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे. Like we said this morning, Almighty God of love.
जैसा उसी तरह से जैसा हमने सुबह गाया कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर comes and is enthroned on the praises of his people. यहाँ पर आ और अपने अपने लोगों की प्रेजेस के सिंहासन पर आ, And there was a stirring of the water, और उसी प्रकार से वह जल हिल गया, shaking of the jail, और उस तरह से कि वो जेल हिल गई, and throwing up a Philippian jailer and his whole family to be saved. और उस फिलिपियों की जेलर और उसका पूरा परिवार बचाया गया. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. How do you can I make disciples? Yes, by reaching out. क्या हम चेले बना सकते हैं? किस तरह से उनके पास पहुंचकर, Reach out to people, लोगों के पास पहुंचकर, reach out to their families, उनके परिवारों के पास पहुंचकर, reach out to their oikos. उनसे जुड़े हुए लोगों के पास You know, पहुंचकर, keep your ear open for needs. और उनकी ज़रूरतों के बारे में आप जानकारी रखें. You should have this antenna, radar, any need in somebody's life. और आपको सदैव यह जानने की आवश्यकता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है. Somebody's depressed, क्या कोई दुखी है? somebody's sick, क्या कोई बीमार है? somebody's going through financial problems, क्या किसी को कोई आर्थिक परेशानी है? somebody's going through a relational problem. क्या किसी को कोई संबंध की परेशानी है? You got to step in and say, I've got good news. आपको अंदर जाकर उसके पास सिर्फ इतना कहना है कि मेरे पास सुसमाचार है. Amen? The Amen. gospel is good news. सुसमाचार एक अच्छी खबर है. What's the good news? क्या है अच्छी खबर? Jesus is alive. कि यीशु जिंदा है. Jesus can turn your situation around. कि यीशु आपकी सारी परिस्थिति को बदल देगा. Jesus can heal. कि यीशु आपको चंगाई देगा. Jesus can deliver. यीशु आपको छुटकारा देगा. Jesus can repair your marriage. यीशु आपकी शादी को वापस बचाएगा. You know, you've got to learn to put yourself out on a limb. और आपको ये सीखना है कि किस प्रकार से आप लोगों के पास पहुंचे. Is the risk of faith. और वो आपको विश्वास के द्वारा दिलाएगा. Say, my Jesus can solve your problem. आप कह सकते हैं कि मेरा प्रभु आपकी परेशानी को बदल He सकता is the है. King of Kings and the Lord of Lords. और वो राजाओं का राजा है. He died on the cross of Calvary for you. वो कलवरी के क्रूस पे आपके लिए मरा. He took your sickness and infirmity. उसने आपकी दुख और परेशानी को ले लिया. Amen. It's good news. ये एक अच्छी खबर है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. I like the story in the book of Acts also of Peter and John. और पौलुस और यूहन्ना की भी पतरस और यूहन्ना की भी कहानी को हम देखेंगे. And they're just going to the temple to worship. वो मंदिर की तरफ जा रहे थे आराधना And करने के लिए. there was a beggar there. और वहाँ पर एक भिखारी था. While coming to church, there was a beggar at my door also. आज सुबह आते वक्त मेरे दरवाजे पर भी एक भिखारी था. There are beggars everywhere, right? हर तरफ हमें ऐसे व्यक्ति मिल But Peter and जाएंगे. John had a different approach. लेकिन पतरस और यूहन्ना ने दूसरे तरीके से सोचा. That guy wanted money. The beggar wanted some money. और वो भिखारी था जो उसको कुछ पैसे की आवश्यकता थी. And Peter and John said, silver and gold we don't have, but we have something. लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ और है. The problem today in the church cannot say silver and gold we don't have. लेकिन परेशानी की बात आज की कलीसिया में ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है. And so what we're supposed to have we don't have. जो हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है. So he says, silver and gold I don't have. उसने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है. But what I have I give to you. लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes people may be in debt and they have lakhs of rupees. They come to you and say, lakhs of rupees I don't have, but I have something which I want to give you. कभी-कभी लोगों के पास कई लाखों का कर्जा होता है और वो आपके पास आते हैं तो आप शायद उन्हें कह सकते हैं कि लाखों रुपए तो मेरे पास नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ. Peter and John discerned the real need. और पतरस और यूहन्ना ने उसकी जो जरूरत थी उसे एकदम वो जानते थे. Why was he a beggar? वो इस चीज को क्यों भीख मांग रहा था? Because he couldn't work. क्योंकि वो काम नहीं कर सकता And था. Peter and John thought, we can solve your real need. लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें जिस चीज की ज्यादा जरूरत है हम उसके लिए वो तुम्हें देते हैं. Get up and walk. उठ और चलने लग जा. Hallelujah. Hallelujah. You know, sometimes on the facade of the needs of people, you need to discern their real need. और कई बार जरूरतों के पहाड़ के अंदर हमें उस सच्ची जरूरत को जानना बहुत जरूरी हो जाता है. Many people are in problems, relationship problem, because they don't have a relationship with God.
कई लोगों को संबंधों की परेशानी इसीलिए होती है, शायद उनका परमेश्वर से संबंध नहीं है। I have something I want to give you मेरे पास कुछ है, मैं आपको कुछ देना चाहता in the हूँ name of Jesus. यीशु के नाम में, Now pray for them. और आप उनके लिए प्रार्थना In the करें। name of Jesus, be healed. यीशु के नाम में उनकी चंगाई के लिए God, प्रार्थना करें touch them right now. कि प्रभु तू आज इसी क्षण उन्हें छू, They will know there's a living God कि वो जाने की एक जिंदा खुदावन है who will satisfy their need. कि जो उनकी हर जरूरत को पूरा करेगा Get them out of debt. और उन्हें उस पूरे कर्जे से छुटकारा दिलाएगा Heal their marriage. और उनके संबंधों को वापस जोड़ेगा। Amen. आमीन। Can I make disciples? क्या मैं चेले बना सकता हूँ? Yes. हाँ, Reach out. आप लोगों की तरफ जाएं। Now, many times people think reaching out, say, you go to people and say, come to my church. और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम लोगों से पहुंचने की बात करते हैं लोगों तक, तो ऐसा होता है कि शायद लोग ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ उन्हें इतना कहना है कि मेरे चर्च आइए। You know, and that's not a bad idea because maybe they come to church and they'll hear the gospel. और ये एक गलत बात नहीं है, क्योंकि जब वो कलीसिया में आएंगे तो वो सुसमाचार को सुनेंगे। But you know what I've learned about relationships? लेकिन जो मैंने संबंधों के बारे में सीखा है, They're like bank accounts. वो एक बैंक के अकाउंट की तरह है। You cannot make a withdrawal until you've made many deposits. और आप जब तक उसमें जमा नहीं करेंगे तब तक आप उसमें से निकास नहीं कर सकते। So deposit in people's lives. आप लोगों की जिंदगियों में जमा करिए, Serve them. उनकी सेवकाई Love on करिए, them. प्रेम करिए। You know, sometimes keep it a secret till they want to ask, hey, why are you different? और कई बार इस चीज़ को छुपाए रखिए तब तक जब तक कि वो आपसे खुद आके ना पूछे कि आप इतने अलग कैसे हैं, Why are you being so nice to me? आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। Let them ask you for the hope that is within you. और आप उनसे पूछने के लिए मजबूर कर दीजिए उन्हें उस आशा के लिए जो आपके अंदर है। Amen. Let God touch people's lives. कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों को छुए। Amen. Amen. I remember my own testimony. मैं अपनी खुद की गवाही को याद करता हूँ। And I was a student. I was about 22 years old. पासवान कह रहे हैं कि वो 22 साल के थे, एक स्टूडेंट थे। And this guy was sharing the gospel with us. और एक व्यक्ति सुसमाचार बांट रहा था। And you know, I was too proud. I didn't want to listen to the gospel. और मुझ में इतना घमंड भर गया था कि शायद मैं उस सुसमाचार को नहीं सुनना चाह रहा था। But this guy was nice. You know, I was like pretty poor student, and he would take me and my friend out to Baskin Robbins and buy us ice cream. और वो व्यक्ति जो था वो बहुत अच्छा था, मुझे और मेरे दोस्त को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाता था। And so, you know, he was depositing in our lives. और वो शायद हमारी जिंदगियों में वो जमा पूंजी करता जा रहा था, Even though we were not responsive. शायद हम उसका जवाब भी नहीं दे And रहे। so when it came time for withdrawals, और जब ऐसा समय आया कि हमें उस चीज से कुछ निकालने की जरूरत when he पड़ी, would ask us to come to a meeting or come to a Bible study, जब उसने हमसे बोला कि कहीं मीटिंग है, कहीं बाइबल स्टडी है, आप आइए, we would say yes. और हमें हाँ करना पड़ा। Amen. In the process, God touched my life. आमीन। और इस तरह से मेरी जिंदगी को छुआ गया And I'm here today. और आज मैं इधर